Hello and welcome to Business Today Television. I'm Karishma Asudani, and joining me today is actually a live of India startup story. I'm talking about Young Entrepreneurs, which is an initiative by the Delhi government, the Business Blasters. You're joining me is a group of these six young entrepreneurs. Say hi to the camera. Well, what's unique about these six entrepreneurs is that it is at the age of 16 and 17 that they've started their business, and right now they're 19 years old. India's young startup story, ladies and gentlemen. I'm going to start off with Ria, you're 19 years old. As we had a quick conversation, tell me, when and how did you discover this business idea? बेसिकली मैंने ये आइडिया डिस्कवर करा अपने आसपास की लोकेलिटी से। फर्स्टली मैंने फोकस करा अपने आसपास की वुमेन अनएम्प्लॉयमेंट पे। बेसिकली हमारी लोकेलिटीज़ में अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होती है, तो मैंने देखा कि उसको कम कैसे कर सकते हैं। तो ये हमारी ओल्ड होमीज़ रेसिपी थी, जिसमें मैंने कुछ इनोवेशंस करके इसे थोड़ा और क्रिएटिव बना के उन सारी वुमेन्स को अपने पास ज़्यादातर एम्प्लॉयमेंट के लिए रखा। सेकेंडली मैंने ये न्यूट्री आपका जो प्रोडक्ट क्रिस्प्स। न्यूट्री, और ये है क्या? बेसिकली ये एक हेल्दी ब्रांड है, राइस चिप्स ब्रांड है, जो ग्लूटेन फ्री है और इसमें कोई प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं किया गया है, जो कि हेल्दी कंपोनेंट से बनता है, लाइक स्पिनिच, बीटरूट एक्सेट्रा। और ये आप घर पर बनाते हैं? यस। एंड कितने की टीम है आपकी, कितने पैसों से आपने शुरू किया और आज आपका रेवेन्यू कितना है? बेसिकली मैंने 2000 रुपीज़ से ये स्टार्ट किया था और अब मैं लास्ट ईयर ऑलमोस्ट 7 लाख रेवेन्यू जनरेट कर चुकी हूँ 7 lakh revenue in 3 years? इन 1 ईयर। In 1 year, 7 lakh revenue, and profit कितना? प्रॉफिट इज़ ऑलमोस्ट 50 to 60%। इट वेरीज अपॉन द कस्टमर्स। That's great. And आपकी टीम ऑफ कोर्स बिजनेस ब्लास्टर्स के अंदर शुरू हुई थी। अभी आपका क्या कंपनी आप फॉर्म करोगे, कैसे इसे फॉरवर्ड लेके जाओगे? यस ऑफ कोर्स, मैंने अभी इसके लिए रजिस्ट्रेशन हमारा प्रोसेस में है, इसका लाइसेंस भी हमारा भी प्रोसेस में है। Great, ladies and gentlemen, that's Ria, and this is, of course, a young entrepreneur idea on making these healthy snacks and healthy appetizers and chips. Tell me, what is your name और ये क्या product है? Myself Abhiruchi, and I'm the founder of Arogyam. So basically my products are very healthy. All my products are made up of dates, superfoods like seeds, nuts, etc. And all my products are beneficial for chronic disease patients and they can consume it up to a limit. So I have started my business during my class 11th at the age of 17 or 18. So during September 2021, Business Blaster was introduced by our CM Shri Arvind Kejriwal ji. At that time, we were given 10,000 rupees because I have a team of 5 members. After that, I scaled up my business. I came up with the idea to create a brand of healthy snacks and breakfast cereals. So that is my brand. And after that, now I am trying for registration and for SI license, etc. After doing that, I will scale up my business on a bigger level and I will become a large company or a unicorn. Oh, you want to be a unicorn. Okay, tell me, how much do you sell this box for? This one box, MRP of this one box is 500 rupees. And what is the kind of production cost, raw material cost? Basically, what profit do you make on each box? On each box I have a profit of around 40 to 50%. 40 to 50%. And how many, what is the kind of strength you have? How many people help you in preparing these boxes? Where do you prepare these boxes? Right now, I prepare these boxes from my own small unit. Basically, we have women employers. Through them, we collaborate with them and tell them to produce our products. So, with a collaboration of women employment and our own team, we create our products. That's great. And what do your parents have to talk about this? Right now, my parents are really proud that I'm becoming an entrepreneur at such an young age. When every parents are thinking that their child should be a job seeker, while I am becoming a job provider.
That's a lovely thing to say. So that, of course, yet another successful business in the making. In fact, likely could become the next unicorn in the country, which is definitely also defining Prime Minister's goals of having youth and education leading towards the startup industry. Okay, looking here, we have yet another set of young women entrepreneurs. Tell me, what is your name and what is your startup about? Hello everyone, myself Preksha Jain, and my startup is based on recycling products. So at Preka Decors, we believe that beauty can emerge from most unexpected sources. So we source recycling centers and even repurpose discarded items into exclusive decor pieces that not only adorn your space but also contribute to a sustainable environment. So we collect wine bottles, we collect some type of discarded material, and we transform it into a stunning decor piece. And right now, my monthly revenue is around 35,000, and till now, I have generated 2,50,000 of revenue in 2.5 years. 2,50,000 in 2.5 years, and what is your profit out of this? Direct 65%. Oh, 65% profit. And you also started this with the rupees 2,000 under Business Blasters. Yes, actually, we were at initial stage. We were the team of 4 members. Two member, 2,000 per head. So we get the total sum of around 8 lakh or 800. Right. Okay. Tell me, how do you sell this? Right now, we showcase our products into some Delhi Heart like exhibitions, and we have online platform also as well. And right now, I'm trying on some online seller. I have listed my product on Flipkart also. Oh, that's great. And this, if I understand, अभी आपने बताया कि ये बना हुआ है कार्डबोर्ड से, Yes, ma'am. सिर्फ एक सिंगल कार्डबोर्ड से. Yes, only a single cardboard. और ये भी discarded है, so I have not purchased it. राइट. और आपके ये डिजाइन इंस्पायर कहाँ से होते हैं? क्या ये घर पर भी कुछ मम्मी पापा से आता है कुछ? Actually, my mother helped me in this. But designs हमारे खुद के made है. हम different pieces में हम इसको कट करवा लेते हैं, and then we transform it into some piece. That's a wonderful initiative. Tell me about this. These looks like photo frames with, of course, around calligraphy. Tell me, what is your business initiative about? सो हाय, आई एम हर्षिता, फाउंडर ऑफ कैली राइट। तो बेसिकली कैली राइट एक यूनिक वेंचर है जहाँ पे हम थॉट्स को एक ब्यूटीफुली क्राफ्टेड कैलीग्राफी में कन्वर्ट करते हैं एंड उन्हें फ्रेम करके आप लोगों तक लाते हैं, ताकि आप उन लोग लाइक हमारे जो थॉट्स हैं ना वो पीपल्स को हेल्प करते हैं उनको मोटिवेट करने में एंड उनके माइंड में एक पॉजिटिव एटीट्यूड क्रिएट करने में। और कैसे आपने ये सोचा कि आप इसमें इंटरेस्टेड होगी? एज सच व्हेन आई वाज इन 8th क्लास, वहाँ पे लाइक हमारे स्कूल में TFI टीचर्स असाइन हुए थे एंड हर नेम इज़ अंकिता मैम। तो उन्होंने हमें कैलीग्राफी आर्ट सिखाई थी ताकि हम लोग फाइल्स वगैरह को और अच्छे से डेकोरेट कर सकें एंड हमारे मार्क्स ऑब्वियसली अच्छे आ सकें। तो हम लोगों ने लाइक जब बिजनेस ब्लास्टर आया तो हम लोगों ने सोचा लाइक व्हाई कांट वी डू दिस। तो हम लोगों ने लाइक कैलीग्राफी को एक आर्ट बनाया। लाइक मेरा एक क्वेश्चन है सबसे, कैन यू इमेजिन कैलीग्राफी दैट इज जस्ट एन आर्ट could be a brand? एंड स्पेशली जब आपने ये चीज स्कूल में सीखी और इसका बिजनेस बना दिया, Exactly. तो मुझे बताइए कि आपका रेवेन्यू क्या है, क्या प्रॉफिट है, कितने इयर्स से आप इन्वॉल्व हैं? आई एम स्टिल 18 एंड मैं 2 ईयर्स से इन्वॉल्व हूँ इसमें एंड मेरा अब तक का टोटल रेवेन्यू 2,70,000 है एंड इसमें से मेरा 70% मार्जिन प्रॉफिट है, अप्रॉक्स 1,90,000। 1,90,000. एंड कितनी लोगों की टीम है अभी? स्टिल वी हैव 5 members in our team. And you are also going to continue to make a big company out of this. Yes, of course. Great. Okay, we've covered, of course, the side of food on the healthier side. In fact, we have got a glimpse of art. Let's try and come to the side of science and technology. Tell me, what is your business idea and product about, and how has it evolved under the Business Blasters? ओके, आई एम निखिल फ्रॉम G7 टेक। तो सिंपली जब मैं 11th तो अपनी 12th क्लास के अंदर था, तो मेरे एक टीचर थे जो हमें पढ़ाते थे, ब्लाइंड थे। तो हम लोगों ने सोचा कि इनकी जो प्रॉब्लम्स है उसको दूर किया जाए। जब भी हमारे टाइम पर एक प्रोग्राम आया बिजनेस ब्लास्टर करके,
तो उन लोगों ने कहा कि आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है और उसको एक बिजनेस में कन्वर्ट करना है। हम लोग आपको 2-2 हज़ार पे सीड मनी देंगे, ठीक है। हम लोगों ने फिर ऐसा ऐसे प्रोजेक्ट चालू किया, बट जब धीरे धीरे करके हम एक लेवल पार करते गए और हमको लगा कि हाँ इसमें मज़ा आने लगा, तो फिर हम लोगों ने पूरा फोकस इसी के ऊपर कर दिया और सोचा कि इसको एक प्रोडक्ट बनाते हैं, ना कि एक प्रोजेक्ट। फिर हमने अपने फाइनल एक प्रोटोटाइप बनाया, उसको अपने सर को दिखाया, जो हमारे ब्लाइंड टीचर थे उन्होंने उसको यूज़ किया। उसके बाद उन्होंने हमको अच्छा रिस्पॉन्स दिया। फिर उसके बाद जब हम लोगों ने 12th क्लियर कर ली, फिर हम लोगों ने एक त्यागराज स्टेडियम के अंदर एक्सपो हुआ था हमारा, तो वहाँ पर हमने सभी इन्वेस्टर्स को पिच किया। वहाँ पर हमको कुछ फीडबैक्स मिले कि आपको ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, कि अपने स्टिक्स में ये वाले डिज़ाइन आप ऐड करो, इसको फोल्डेबल बनाओ, साइज छोटा करो, ये सब चीज़ें हमको वहाँ से फीडबैक मिले। उसके बाद फिर हम लोगों ने इस पर वर्क करना चालू किया और फिर उसके बाद हमने इसको जब फाइनली एक कंपनी में मैंने से इसको प्रिंट करवाया डिज़ाइन को, और उसके बाद हमने इसको सेल करना चालू किया। तो हम लोगों ने जब उस समय इसको सेल किया तो हम लोगों ने 3 लाख रुपीज़ का रेवेन्यू इस स्टिक से निकाला था, जो कि हम डायरेक्ट एनजीओज में जाके सेल कर रहे थे। और जो हमारे घर के आसपास और हम हमारे टीचर ने जो हमें कॉन्टैक्ट्स दिए, हमने उनको सेल किया। तो टोटल 3 लाख रुपीज़ का रेवेन्यू आया इससे हमको, और इस पे हमें 60% का प्रॉफिट हुआ था इस पर, ठीक है। और उसके बाद फिर जब हमें आगे जाके सेल किया और अभी हमें और फीडबैक मिलने लगे कि हमें इसमें और भी चीज़ें ऐड करनी है, तो आर&डी पर हमें पूरा एक पैसा चाहिए उसको और बढ़ाने के लिए आगे, और उसमें नई नई चीज़ें ऐड करने के लिए कि हमको इसमें एक गूगल वॉइस डाल देनी चाहिए, कि मैं अगर मेरे को किसी प्लेस पर जाना है तो मैं उसको अपनी स्टिक को एक कमांड दूं और वो मेरे को वहाँ पर नेविगेट करे कि यहाँ से आपको लेफ़्ट मुड़ना है, राइट मुड़ना है, ये सब चीज़ें आपको दे। तो वो चीज़ करने के लिए अभी हमको थोड़ा फाइनेंशियली नीड है, तो उसके लिए फिर हमने एक दूसरे प्रोडक्ट पे स्विच किया, जो कि अभी हम कर सकते हैं। एक होता है FDM 3D प्रिंटर, जो कि आप मेटल एंड नॉन मेटल दोनों चीज़ें इसमें प्रिंट कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल 3D प्रिंटर जो आते हैं वो 1 CR 2 CR में आते हैं, और जो अगर छोटे भी आते हैं तो 30-40 लाख रुपीज़ में आते हैं। हम उसी प्रोडक्ट को बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में कन्वर्ट करके, जिसका प्राइस है ओनली 7 लाख रुपीज़, तो हम उसको सेल कर रहे हैं। और इसमें मैं मेटल एंड नॉन मेटल और वही क्वालिटी के साथ मैच कर पा रहा हूँ कि जो क्वालिटी वो CR वाले दे रहे हैं। राइट। ये ये प्रोडक्ट है, बिल्कुल। राइट। तो ये प्रोडक्ट, अच्छा, अगर मैं ये इसे कैमरा पर भी दिखाऊं, आप बिल्कुल। समझा सकते हैं कि इधर किस बिल्कुल। क्या कंपोनेंट क्या है? सो यहाँ पर एक सेंसर लगा हुआ है जो कि आपको बताएगा कि आगे कुछ है, तो वो वाइब्रेट एंड एक आपको सिग्नल दे देगा कि आपके आगे कुछ है। यहाँ पर एक LED लाइट लगी हुई है, तो वो एक सामने वाले के लिए सिग्नल है कि एक रेड कलर का वार्निंग अलार्म है कि आगे से कोई ब्लाइंड पर्सन आ रहा है, आप वहाँ से उसको रास्ता दे सकते हो। यहाँ से आप इसको इस तरीके से कैरी करोगे एंड यहाँ से आप अपनी स्टिक इसमें कनेक्ट करोगे। बिल्कुल। और जो नया इसमें वेरिएंट था, जो हमने एडवांस लेवल पे अभी जो R&D चल रही है हमारी, उसमें हमने यहाँ कैमरा और इंटीग्रेट किया है कि आगे एग्जैक्ट क्या चीज़ है, एक पर्सन है, कोई जानवर है, या फिर एक कोई भी चीज़ है, वो आपको एक बताएगा वर्बली आपके कानों में कि आगे एग्जैक्ट क्या है, और आप यहाँ से लेफ्ट मुड़ोगे, राइट मुड़ोगे, जो भी आपको नेविगेशन चाहिए। How old are you? I am 20 years old. And at 20, how did you discover and realize a lot about, how did you get into this R&D? Because ये terms तो मुझे भी नहीं समझ आ रहे हैं इतने सारे। आपका इंटरेस्ट कैसे आया इसमें? एक्चुअली मैम मैं 12th में साइंस स्ट्रीम से ही था, PCMB, बट मैं नीट की तैयारी कर रहा था मेडिकल के लिए। तो जब ये प्रोडक्ट मैंने देखा तो मैंने नीट पर फोकस कम किया, अपने इस प्रोडक्ट पे ज़्यादा ध्यान दिया, क्योंकि मेरे को इसमें ज़्यादा मज़ा आने लगा। और मैं ना शुरू से मैम पैसे कमाने के लिए बहुत ज़्यादा वो रहता हूँ। तो अभी अगर मैं यहाँ से भी अगर पैसा कुछ निकाल रहा हूँ तो उसका मैं शेयर मार्केट में अपना इन्वेस्ट कर देता हूँ, तो वहाँ से भी हम लोगों को आता है। तो आप अब नीट की तैयारी नहीं कर रहे? नो मैम, अभी मैं नीट की तैयारी नहीं कर रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनूँ, और जो भी ब्लाइंड्स की जो प्रॉब्लम्स हैं या फिर जो भी डिसेबल पर्सन्स प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उनके लिए एक ऐसा प्रोडक्ट बना दूँ कि वो अपनी लाइफ को इंडिपेंडेंटली होकर जिए। इसीलिए G7 टेक्स का जो स्लोगन है, लिव इंडिपेंडेंटली, है। हर बंदा अपनी लाइफ को एकदम इंडिपेंडेंटली होकर जीना चाहिए, वो किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। What a lovely thought. It's coming, the Young India story, viewers, that we are talking about. And as you see live, this is a group of 6 students who've done exceptionally well in bringing business out of their education and taking it forward. The last and definitely not the least is joining me is Chetan, and I've kept him. I've wanted to discuss with him in the end, because I've realized that all these entrepreneurs have their
business and have their trade going on with the help of Chetan, who's mastering his family logistics talent in a startup that he's leading. Chetan, tell me, what exactly do you do? Tell me about your website Yatu, and how has it been helpful? हेलो मैम, माय नेम इज़ चेतन। यातू एक स्टार्टअप्स का अपना मार्केट प्लेस है। लाइक हमने अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो तो सबने सुना है। वहाँ पे सेलर्स भी सेल करते हैं अपने प्रोडक्ट, पर उन सेलर्स को बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं और स्टार्टअप्स अर्ली स्टेज में उन चैलेंजेस को फेस करने के लिए नहीं होते रेडी। तो उसका एक सॉल्यूशन था, जैसे बिजनेस ब्लास्टर का हमारा प्रोग्राम है, उसमें एवरी ईयर 50,000 प्लस स्टार्टअप्स आते हैं। मैं भी उन्हीं में से एक था। मैंने भी अपना प्रोडक्ट बनाया, सेल करा। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से मेरे को उससे अच्छी सेल भी मिली, अप्रॉक्स 65 लाख की अब तक सक्सेसफुल सेल। बट मैंने देखा मेरे अलावा जो और स्टार्टअप्स है वो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे सेल नहीं कर पाए। अगर उन्होंने ट्राई भी करा तो उनको सेल नहीं मिली। इसलिए मैं यातू को लेके आया, बिजनेस ब्लास्टर का अपना अमेजॉन हम इसको कह सकते हैं। यहाँ पे हमने जितने भी यंग स्टार्टअप्स हैं उनके प्रोडक्ट्स को लिस्ट करा हुआ है। सिर्फ लिस्ट ही, उनके प्रोडक्ट्स यहाँ से लोगों को शोकेस हो रहे हैं। उनको जो ऑर्डर्स आ रहे हैं उनको नोटिफाई करा जा रहा है। उस नोटिफाई करने के बाद उनके घर पे हमारे कोरियर बॉयज़ जाते हैं, उनके प्रोडक्ट को पिकअप करके ऑल ओवर इंडिया कहीं भी वहाँ पे डिलीवर करा जाता है। कैश ऑन डिलीवरी के ऑर्डर्स हों तब भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। कैश कलेक्ट करके सेलर्स के अकाउंट में, बैंक में पेमेंट सेटलमेंट करी जाती है। मतलब प्रॉपर एक हमने अपना मार्केट प्लेस बनाया स्टार्टअप्स के लिए। और चेतन, आपने इस आइडिया के बारे में कैसे सोचा अंडर बिजनेस ब्लास्टर्स? क्या ये आपकी कोलैबोरेटेड एफर्ट्स थे कि भाई मेरे दोस्त प्रोडक्ट्स बना रहे हैं तो मैं वेबसाइट बना देता हूँ? मैम, जब मैं 15 ईयर्स का था मैं पार्ट टाइम किसी अमेज़ॉन के सेलर के वहाँ जॉब करता था। तो मैंने वहाँ से पहले इंस्पायर होकर और सीख के अपना खुद का अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पे सेल करना चालू करा। मेरे को वहाँ से बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले, पर मैंने देखा जो मेरे फ्रेंड्स हैं या फिर जो भी मेरे जूनियर्स आ रहे हैं स्टार्टअप्स में, वो नहीं कर पा रहे हैं। उनकी सेल्स एक लिमिट पर जाके रुक जा रही है। वो कहते तो हमें अकाउंट से सेल करना है, बट उनको बहुत सी सारी चीज़ें उनको रोक देती हैं। या फिर अगर वो सेल भी करते हैं तो वहाँ पे उनको विजिबिलिटी नहीं मिलती। उनके ऑर्डर्स रोज़ के 2-3 आ रहे हैं। तो इस सब चीज़ों को देखते मेरे रोज़ के 130 तक ऑर्डर्स थे। तो फिर मैंने उन सबको देखकर वहाँ से इंस्पायर होकर यातू को लाया हूँ। और बेसिकली ये इंडिया का अमेजोन और फ्लिपकार्ट हो गया, यानी ई कॉमर्स वेबसाइट इन इंडिया। यस मैम, स्टार्टअप्स का अपना अमेज़ॉन। स्टार्टअप्स का अपना, और इसमें प्राइमरीली आपके बिजनेस ब्लास्टर्स के सेलर्स हैं? यस मैम, हम स्टार्टिंग में उन पे फोकस कर रहे हैं। उसके बाद हमारा ये रहेगा कि जैसे आपने इंस्टा पे देखा, आज के टाइम पे हर लोग स्टार्टअप्स करने की कोशिश कर रहे हैं। वो रील्स पर ही हैं, अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट बनाते हैं, उस पर विजिबिलिटी नहीं आती। अगर हम सभी को एक प्लेटफॉर्म के अंडर ले आएँ तो मतलब एक उनको अच्छा बूस्ट मिलेगा। इसके साथ हम ट्रेड फेयर में जाते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं छोटे छोटे स्टार्टअप्स आते हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया के, बट हमें उनका कोई प्रोडक्ट अच्छा लगता है हम उस दिन तो परचेस कर पाते हैं। शायद से 80% हमें दिखते ही नहीं उसके बाद। अगर वो सब एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे हमारे, तो हम उनको वहाँ से परचेस कर सकते हैं और उनका बिजनेस रेगुलरली वहाँ से बूस्ट होता रहेगा। ग्रेट। चेतन, आपसे एक क्वेश्चन ज़रूर है मेरा कि क्या चैलेंजेस एक यंग एंटरप्रेन्योर फेस करता है? आप सब इतने फ्रेंड्स हैं एक साथ, आप आई एम श्योर डिस्कस करते होंगे बोर्ड मीटिंग्स में, जैसे होते हैं कंपनीज के बोर्ड मीटिंग्स में डिस्कशंस, आपकी भी मीटिंग्स होती होंगी ऐसे एक साथ से डिस्कस करने के लिए। क्या मेजर चैलेंज आपको दिखता है? मैम, सबसे बड़ा चैलेंज तो लाइक स्टार्टिंग में हम स्टार्टअप कर रहे हैं तो उसके लिए जो फंड्स होते हैं हमें मतलब बहुत सोच समझ के एक मतलब सीड मनी अपने उसमें डालनी होती है कि ये चलेगा भी नहीं चलेगा प्रोटोटाइप बनाने में। उसमें सबसे ज़्यादा प्रोटोटाइप बनाने सबसे मुश्किल होता है मान ले। फिर अगर हमने अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर लिया तो मैम उसकी मार्केटिंग करना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। क्योंकि जैसे अमेजोन है, हम तो डायरेक्ट अमेजोन से कॉम्पिटिट कर रहे हैं और अमेजोन तो मैम पूरे वर्ल्ड लेवल की कंपनी है। तो मतलब इसके बारे में सोचना ही बहुत मुश्किल हो जाता है कि इतने बड़े मतलब बिजनेस का हम कंपटीशन बन रहे हैं। आप कंपटीशन बन रहे हैं। अच्छा चेतन, आपने बोला 65 लाख का आपने रेवेन्यू किया, कितने साल में? मैम, इसमें 2 इयर्स में है और जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर की हमने ITR भरी है वो 53 लाख की थी। और ये 53 लाख में आपने, आपका ऑफ कोर्स प्रॉफिट भी शेयर रहा होगा इसमें? यस मैम, अप्रॉक्स 15 to 18%। 15 to 18%। तो इन सेविंग्स का क्या करते हो? मैम, इन सेविंग्स का कुछ तो लाइक गोल्ड्स में सेविंग करने का मन करता है क्योंकि वो अच्छा ग्रो होता है। और दूसरी चीज़ मैम, जैसे छोटे स्टार्टअप्स होते हैं, जैसे मेरी सिस्टर का भी इंसेंस स्टिक्स का कराया फ्लावर वेस्ट से, ऐसे कुछ और मेरे फ्रेंड्स हैं, तो उनके स्टार्टअप में इन्वेस्ट करके और उनसे बोल के कि 60% तुम्हारा, 40% मेरा, मेरी स्किल्स इसमें यूज़ होंगी और उससे मंथली कुछ ना कुछ आता भी रहता है। और एक दिन मैं ग्रुप बना दूंगा पूरा एक कंपनीज का, ऐसे लाइक टाटा ग्रुप है। बिजनेस फैमिली से आते हो? मैम, मदर फादर तो नहीं, बट मेरे चाचा जी हैं, वो बिजनेसमैन है। ओके, ग्रेट। अच्छा, एक वर्ड ऑफ एडवाइस देना चाहती हो अगर कोई यंग स्टूडेंट जो बिजनेस ब्लास्टर्स में एनरोल करना चाहता है, उसका आइडिया रेडी है बट शायद डर रहा है डालने में अपना आइडिया, बताइए क्या बोलना चाहेंगे उसे? वो अपने प्रोडक्ट्स को यातू पे लिस्ट करें, उनका प्रोडक्ट जरूर सक्सेसफुल होगा।
That's a true businessman. He's a true entrepreneur because he's selling his own business. Well, viewers, that was the startup story of young entrepreneurs. Business Blasters close to have about 1,000 such entrepreneurs who've been working hard, listing their business, and have a growth story to talk about. With the seed funding of rupees 2,000 under the Delhi government's initiative, now they're, of course, aiming to take this bigger. Most of them here are aiming to become unicorns. Karishma Asudani with cameraman Prem Chand, Delhi.